Yeah. Are you able to see this picture? Yes, sir. Okay. So it was the suppressed carrier, and when the resultant of these two sidebands is given, then these sidebands will be termed as, so instead of writing here the suppressed carrier, okay, instead of writing the this is the suppressed carrier. Okay, so suppressed carrier, and here if this is taken as the resultant of these two sidebands, then it can be termed as resultant of sidebands. Okay, so where we will got this resultant here. So yeah, after the balanced modulator, after this balanced modulator, we have got this resultant of sidebands and combining network output. So this is the combining network. So the combining network output will be like this phasor. So let it be as F, maybe. So the signals are the resultant. Okay, so it is the resultant part. We have these two sidebands and the unmodulated carrier. So unmodulated carrier was what? So this was the unmodulated carrier. So let it be connected with the tail of the resultant. Okay, so this is what? This was the unmodulated carrier. This was the unmodulated, because at the combining network पर हमें क्या क्या मिल रहा है? Combining network पर हमें unmodulated carrier मिल रहा है और क्या मिल रहा है? साइड बैंड्स मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंबाइनिंग नेटवर्क पर हमें कैरियर मिल रहा है और साइड बैंड्स मिल रहा है. तो कैरियर ये था अनमॉड्यूलेटेड कैरियर जो कि हमने इधर ड्रॉ किया है. इस अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के साथ हमें क्या मिल रहा है? ये जो रिजल्टेंट है किसका? दोनों साइड बैंड्स का जो रिजल्टेंट है वो. सो अभी इन दोनों को मिलाकर जब हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, देन वी विल हैव अ रिजल्टेंट लाइक दिस एंड देयर विल बी अ phase angle between these two signals. Okay, so this is what? This is the resultant at the output of combining network. So ये जो मिला है, this is the resultant of combining network. Okay, so ये कौन सा? ये वाला पार्ट है, ये जो मैं यहाँ देखा. So let me change the color of this resultant. So let it be in black color. Okay, so this is the what? This is the resultant of the combining network. So इस combining network के बाद हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक सिग्नल मिल रहा है जो कि क्या है? बेसिकली दी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अभी यहाँ जो सिग्नल मिल रहा है, दिस इज दी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि फॉर द लो वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जब लो वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स रहता है, इन दैट केस वी ऑलरेडी नो दैट दी. अच्छा, इसके पहले एक चीज और कि हम यहाँ पर जो DSBSC सिग्नल मिल रहा है, दिस DSBSC सिग्नल में जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होगा, यानी कि जो भी साइड बैंड्स होगा, इन साइड बैंड्स में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस,
sidebands is proportional to what? Proportional to the modulation index. Okay, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर ज़्यादा हो, इन दैट केस साइड बैंड्स का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा इन केस ऑफ DSBSC. ओके, सो यहाँ पर अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ता है, यानी कि इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर बढ़ता है, इन दैट केस दी साइड बैंड्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या था, हमने देखा था पहले MAC/2. ओके, so this was the amplitude of sidebands. So amplitude of sidebands क्या होता है, वो घटता या बढ़ता है based on the value of modulation index. okay, और एक चीज हमने और क्या देखा कि जो फेज है, in case of phase is also proportional to AM. That is what? The modulation. जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें मिला उसके अकॉर्डिंग जो एम्पलीट्यूड मिला उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि फेज में इंक्रीज होगा कब? जब AM क्या है? AM इज द maximum amplitude of the modulating signal. So phi, the phase angle is proportional to the modulating signal. And ये modulating signal जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिपेंडेंट है XT के ऊपर. यानी कि अगर XT का वैल्यू बढ़ रहा है, इन दैट केस द फेज एंगल विल इंक्रीज एंड द फेज एंगल विल डिक्रीज व्हेन AM विल डिक्रीज. सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस amplitude, the phase is changing, hence we are getting. so यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस पिक्चर में कि ये फेज जो है वो चेंज करेगा बेस्ड ऑन दी एम्पलीट्यूड ऑफ दी साइड बैंड्स, क्योंकि ये साइड बैंड बढ़ेगा अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ता है, और अगर ये साइड बैंड्स बढ़ेगा तो जो रिजल्टेंट है वो भी बढ़ेगा. अगर रिजल्टेंट बढ़ता है देन वी विल हैव व्हाट? दी, ये जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? वो एक इंक्रीज्ड वैल्यू मिलेगा. किसका? इस फाई फेज एंगल का. तो यहाँ पर एक्चुअली हमने दिखाया क्या है कि ये जो ब्लॉक है फेज मॉड्यूलेशन वाला, ये जो फेज मॉड्यूलेशन वाला ब्लॉक है, इस फेज मॉड्यूलेशन वाले ब्लॉक में जो वर्किंग प्रोसीड्यूर है, मतलब ये फेज किस तरीके से मॉड्यूलेट हो रहा है, फेज किस तरीके से मॉड्यूलेट हो रहा है, हमने यहाँ पर ये दिखाया है. ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने जो यहाँ पर फेजर ड्रॉ किया, पहले अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का, उसके बाद 90 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल का, और 90 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल जो मिला किसका? कैरियर का, यहाँ पर बैलेंस मॉड्यूलेटर के ऊपर, वहां से हमने यूएसबी और एलएसबी जनरेट हुआ. इस यूएसबी और एलएसबी का जो हमने रिजल्टेंट देखा, देन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस. और इसके बाद कंबाइनिंग नेटवर्क जो था, कंबाइनिंग नेटवर्क में क्या आ रहा था? कैरियर और बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट आ रहा था. यहाँ से कैरियर का जो पार्ट है इसे हमने इसके टेल पर लगाया. इन दैट वे वी हैव प्रोड्यूस्ड द phase modulated signal. Okay, so this is the phase modulated signal where there is a phase angle of phi. So ये phase modulation इसका जो वैल्यू है ये बढ़ या घट सकता है based on the increment or decrement of the modulation index. Okay, modulation index घट या बढ़ रहा है, based on that the angle is changing. ठीक है, in this way we are getting the phase modulation. So this phase modulation can be converted to FM with the help of this integrator. Okay, so this is all about this Armstrong method. Okay, so I think maybe there will be some doubt. So if there is any doubt, you can ask me. So is there anyone who is in waiting? Okay, let me see that. Okay,
So if there is confusion, then you can ask me or come with your doubts in the next class so that we can rectify that. Okay. Okay, sir. So I will also share the Okay, sir. so I will also share the notes so that you can go through that, and if there is any confusion, then please let me know. Thank you, sir. Okay. Okay then. Thank you.